Hello students, welcome to another lecture on one of literature's most iconic dramas, The Way of the World by William Congreve. So let's get started. Let us first have a look at the historical background. In this, we will be covering the restoration of monarchy, impact on English drama, and comedy of manners and its salient features. This is section 1. So let's move ahead. This is a picture from the Restoration time wherein Charles II is being restored to monarchy, the throne, and this represents that. You can see Charles II in the center in white, and there are people who are welcoming him. And the second picture is from one of the dramas during the Restoration times. Okay, so moving ahead with the background discussion, uh, the first point is restoration of monarchy and its impact on English drama. So, what do we mean by restoration of monarchy? Restoration of monarchy का मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है that it happened in 1660. It happened in England, and what does it mean? It means that King Charles II, who was the rightful heir to the throne of England, was in exile in France, and he returned back to England to uh, to take over the throne. He was called back after the death of Oliver Cromwell. And what happened then? This also was the time when the theatrical performances were revived. Now, why is this important? Because in 1642, the Puritans who were in power that time under Oliver Cromwell, they had banned the theatres. The theatres were closed. Why did they do it? Because Puritans believed that there should be a certain morality that public should follow, and theatres were interfering with that. So Puritanic norms of conduct and morality were imposed during the reign of Oliver Cromwell, and this was replaced now during Restoration times by the new kings, that is King Charles II. His wit and gallantry, he encouraged an atmosphere of hedonistic liveliness in his court. Now, what do we mean for those students who may not be very comfortable in English? I will also explain this in Hindi. कि राजा जो था, चार्ल्स टू जो था, उसे निष्कासित कर दिया गया था। फ्रांस चला गया था वो अपनी मदर के साथ, क्वीन के साथ, जो खुद फ्रांस की राजकुमारी थी। और ये सब हुआ जब प्यूरिटन्स जो ग्रुप था, प्यूरिटन्स जो बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, बड़े वो ये मानते थे कि भाई क्रिश्चियनिटी में आपको एक तरीके से रहना है। जो थिएटर है उसमें अनैतिक चीजें सिखाई जा रही हैं, अनैतिक कंडक्ट होता है, अनैतिक व्यवहार होता है। तो इसीलिए उनका जब राज आया तो उन्होंने ये सब चीजें बंद कर दी और राजा को भी मार दिया, जो किंग चार्ल्स टू के पिताजी थे। और इसके बाद में उन्होंने थिएटर्स बंद कर दिए, जो कि 1642 में हुआ। अब जब नए राजा आए, इनको बुलाया गया। जब ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, प्यूरिटन्स के टाइम में वो राज कर रहे थे, वो राजा नहीं थे, वो एक आम आदमी थे। और ये अलग कहानी है कि भाई वो क्यों आए, कैसे आए, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, वो प्यूरिटन्स के टाइम में हेड कर रहे थे, राज कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि व्यवहार और नैतिकता एक हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन जब ये नए राजा आए, किंग चार्ल्स टू, तो इनका जो व्यवहार था, देखिए ये फ्रांस में पले बड़े थे, तो वहाँ के माहौल के मुताबिक एक अलग तरह की
जीवन शैली को इन्होंने अपनाया, जिसमें कि जिसे कहते हैं हीडोनिस्टिक लाइवलीनेस। हीडोनिस्टिक का मतलब है कि आप एक आनंदमय जीवन जिए और उस आनंद के लिए जो जो जरूरी है आप वो सब करें। जैसे भोग विलास कह सकते हो, अय्याशी कह सकते हो। तो ये सब तरीका है जिसमें आपको किसी भी तरह नैतिकता आपके ऊपर बंधन ना बने। आप अनैतिक होकर भी भोग विलास कर सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और नए राजा जो थे उनका यही मानना था। तो इसीलिए जो राज्य था उसमें एक अलग तरह की हवा, एक अलग तरह की लहर चली कि हर कोई नैतिकता को दरकिनार करके और हर कोई एक आनंद की तरफ खिंचता चला गया। और उस आनंद के लिए जरूरी नहीं नैतिकता रहे, ठीक है। और विट, विट मतलब एक तरह का हास्य, गैलेंट्री, एक तरह का आपका एक जेंटलमैन वाला व्यवहार। तो ये एक माहौल था 1660 में इंग्लैंड में। और रेस्टोरेशन शब्द का अर्थ है कि किसी भी चीज को जिसे हटाया गया था उसके पद से, उसको दोबारा उसके पद पे बैठाया जाए। तो इसमें भी यही है, किंग चार्ल्स टू जो है इन्हें रिस्टोर किया है। मोनार्की मतलब एक राजा की राज्य में एक राजा के पद पर। लेट्स मूव अहेड नाउ। अच्छा, इसका फर्क क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा। इम्पैक्ट मतलब इसका प्रभाव, प्रभाव क्या हुआ अंग्रेजी इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा मीन्स किसी भी तरह का नाटक। तो पहली बात ये थी कि क्योंकि माहौल बदल गया था एकदम से। 1642 से थिएटर बंद थे, 1660 में खुले जब राजा आए। तो एकदम से काफी टाइम तक लोग दबे बंधे और अपने घर में दुबके बैठे हुए। और एक अब एकदम आजादी वाली फीलिंग थी, एकदम से फ्री फील हो रहा था। तो नई टाइप की हवा चल रही थी और नए जनरेशन, न्यू जनरेशन ऑफ प्ले राइट्स जो थे वो आए। नए जो नाटककार होते हैं, नाटक लिखते हैं, अलग नए तरह की राइटर्स आए। अच्छा, ये किस तरह की चीजें लिख रहे थे? जैसा कि राजा को पसंद था, जैसा कि राज्य में माहौल था, जिसके बारे में हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी खासियत क्या क्या थी? एक तो था कि इसके जो डायलॉग थे उसमें बहुत ज्यादा मजाक होता था। इनकी जो रूपरेखा थी, नाटक की कहानी जो थी उसमें काफी एक्शन होता था। सेक्स को काफी अहमियत दी जाती थी। हर तरह की षड्यंत्र इसमें रचे जाते थे। अब ये सब चीज दिखा रहा है कि वहां का माहौल क्या था। अच्छा, इसमें तीन जो राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, नाटककार थे, वो थे जिन्हें इस जमाने का सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कि इस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे। पहले हैं जॉर्ज ईथरिच, दूसरे हैं विलियम वाइचेले और तीसरे हैं विलियम कॉन्क्रीट। अच्छा, इनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? मिडल्टन और शर्ली। ये एलिजाबेथन टाइम के ड्रामेटिस्ट थे, राइटर्स थे। इनके जो षड्यंत्र इनकी कहानियों में होते थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड षड्यंत्र थे। उस चीज का प्रभाव पड़ा इन लोगों पे। किस पे? रेस्टोरेशन वाले ड्रामेटिस्ट पे। दूसरा प्रभाव पड़ा ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर। ये भी दोनों दो अलग व्यक्ति हैं। ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर अलग अलग दो व्यक्ति हैं। और इनका जो राइटिंग थी ये भी एलिजाबेथन टाइम के थे। इनकी जो राइटिंग थी उसमें सिनिकल वर्ल्ड व्यू। सिनिकल मीन्स एक आपका हर चीज के प्रति एक कटाक्ष जो होता है, जिसमें आप एक तरह का एक वार भी करते हैं, जिसमें आपको एक चीज, हर बोलने का तरीका या देखने का तरीके में, आपके बात करने के तरीके में एक तरह का वार होता है, अटैक होता है। सिनिकल वर्ल्ड व्यू। तीसरा था मॉलियर। मॉलियर एक फ्रेंच राइटर थे। उनके डायलॉग बड़े मजाकिया डायलॉग होते थे, विटी डायलॉग। और चौथे थे जॉनसन, बेन जॉनसन, जो एलिजाबेथन टाइम के थे। उनका कैरेक्टराइजेशन, उनके जो कैरेक्टर्स थे वो भी बहुत ह्यूमरस थे। दे वर वेरी वेरी ह्यूमरस। ओके, so new generation of playwrights cater to the courtly taste with their witty dialogue, bustling plots,
sexual innuendos, and intrigues. The trio who dominated were George Etheridge, William Wycherley, and William Congreve. The literary influence they had: Middleton and Shirley's intricate plots and intrigues, Beaumont and Fletcher's cynical worldview, Moliere's witty dialogue, and Johnson's humorous characterization. Now we move on to comedy of manners. What is comedy of manners? Comedy of manners is a type of comedy, a type of drama, which is a comedy. And what is it telling us? Firstly, its main objective, उसका पहला उद्देश्य है to evoke laughter, हंसाना, लोगों को हंसाना. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जिस चीज पे हंस रहे हैं वो नैतिक है या अनैतिक है, डिसेंट है या इमोरल है. हंसाना उद्देश्य है. दूसरी बात, lifestyle and social conduct of the leisured, fashionable urban upper classes during the 1660s and 70s. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में किन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है? जो अपर क्लास होते हैं. अपर क्लास मीन्स अमीर खानदान वाले, अमीर लोगों की, शहरी लोगों की जीवन, उसका मजाक है. उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके सोशल सोसाइटी में उनका व्यवहार कैसा होता है. ये लोग जिन्हें अपने इनके पास काफी वक्त होता है, फ्री टाइम होता है अपने हॉबी परस्यू करने के लिए, फैशन करने के लिए, और इनका जीवन कैसा होता है, इस पे फोकस क्या है? फोकस है उनके मैनर्स पे, उनके कि उनके मैनर्स जो है वो कितने आर्टिफिशियल हैं, असली नहीं है, वो दिखावा कितना है उसमें. फॉल्ट्स, फॉल्ट्स मीन्स उनकी कमियां, फॉइबल्स, फॉइबल्स अगेन उनकी मिस्टेक. कि ये जो पैसे वाले हैं, जो शाही खानदान के आदमी और औरत हैं, मेन एंड वुमेन, एरिस्टोक्रेटिक मीन्स शाही, ऐसे लोगों की के पर्सनालिटीज, इनका रख रखाव, इनका रहन सहन, इनकी जीवन शैली, इसके ऊपर इनका मजाक है, जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स. जैसा कि शब्द मैनर्स कहता है, इनके मैनर्स, इनका बिहेवियर. अच्छा, अगला पॉइंट है कैरेक्टर्स. इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स में? सेंसुअल मीन्स हमेशा सेक्स के ऊपर उनका फोकस रहता है. इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा प्राइड होती है, अहंकार होता है. प्रिडेटरी, प्रिडेटरी मीन्स हर किसी पे, हर किसी की हर वक्त उनका यही उद्देश्य होता है या तलाश होती है, हम किसको अपना, किस पर हम अटैक करें, किसको हम अपना शिकार बनाएं. एक शिकारी प्रवृत्ति. प्रिडेटरी मीन शिकारी प्रवृत्ति. एंड इमोरल, इमोरल मीन अनैतिक, नैतिकता नहीं, अनैतिक. और कभी कभी ऐसे कैरेक्टर जो हैं वो इंसानी फितरत जो है उस पर भी कमेंट कर ही देते हैं कि इंसानों में देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं. एक तरफ आप अच्छा बोलते हो पब्लिक में और दूसरी तरफ आप प्राइवेट में बिल्कुल अलग होते हो, है ना. सिनिकल. कॉमन ट्रोप्स, कॉमन ट्रोप्स का मतलब है कि इनमें कॉमन जो चीजें होती थी, कॉमन चीजें इन द सेंस कि एक कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के. तो पहला पॉइंट इसमें है मिस्टेकन एंड डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी. मिस्टेकन मीन्स गलती से, आइडेंटिटीज मीन्स पहचान, डिस्गाइज्ड मीन्स आपने वेश बदला हुआ है, मिस्टेकन मीन्स गलती से. तो किसी की भी पहचान मिक्सअप हो गई है. जैसे कई बार हम ट्विंस में भी देखते हैं, हम समझते किसी को है और निकलता कोई और है. कई बार हम ऐसी कहानियां भी देखते हैं जिसमें कि हम इंतजार किसी का कर रहे हैं और कोई आता है, हम उसे कुछ और समझते हैं पर वो होता कोई और है. तो ये हो जाती है मिस्टेकन एंड डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी. अगला पॉइंट है सेक्सुअल टेंशन, कि भाई आदमी औरत या फिर किसी भी तरह की सेक्स से रिलेटेड टेंशन हो रही है. इंट्रीग, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं लवर्स के बीच में. और झगड़ा, स्ट्राइफ मतलब झगड़ा, स्ट्राइफ बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर जनरेशन. दो जनरेशन है, एक पुरानी जनरेशन, एक नई जनरेशन. इनमें भी जो झगड़े हैं, ये तो ये जो ओल्डर जनरेशन यंगर जनरेशन है, ये तो आज भी लागू होता है और काफी चीजें आज भी लागू होती हैं. आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड.
कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी, इसका अंत में इनका धीरे धीरे इसका अंत भी हुआ और इसकी जगह पे आई सेंटिमेंटल कॉमेडी। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? तो इसका जो पतन हुआ कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, इसकी शुरुआत जो कहते हैं रफली मानते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था 1688 में हुआ था और उसके बाद से धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का उदय हुआ, इमर्जेंस हुआ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का। और ये जो ओपन लाइसेंशियसनेस और प्रोफिलिगेसी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, इसने काफी लोगों को आहत किया। जैसे कि ओपनली आप अफेयर्स कर रहे हो सोसाइटी में, एक इंसानी समाज नहीं, ऐसे लगता है जानवरों का समाज है। इस टाइप की जो रिलेशन है, ये काफी लोगों को पसंद नहीं आई। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन पीरियड था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है और सेंटिमेंटल कॉमेडीज उभर रही हैं, ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें जाने माने सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, वो कौन थे? दो थे, जॉर्ज फर्कुहार और जॉन वैन बुर्ग। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस जमाने का ये है कि इसी टाइम पे 1698 में आई एक पैम्पलेट, जेरेमी कॉलियर ने लिखी, एक पैम्पलेट लिखी जिसका टाइटल था अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। इसमें इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया इस टाइप की कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, जिसे हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, कि इसमें कितना गलत चीजें दिखाई है जो समाज के लिए बहुत खराब है। अब हम चलते हैं ऑथर के बारे में, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये ऑथर कौन है? विलियम कॉन्ग्रीव। और हम देखेंगे उनका लिटरेरी करियर। तो ये है पिक्चर विलियम कॉन्ग्रीव की। विलियम कॉन्ग्रीव का 1670 में 1670 में इनका जन्म हुआ और 1729 में इनकी डेथ हो गई। इनके जाने माने जो वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं, उनमें सबसे ऊपर आता है नाम, पहला ड्रामा लव फॉर लव जो 1695 में इन्होंने लिखा। दूसरे नंबर पे आता है द डबल डीलर जो 1693 में इन्होंने लिखा। तीसरा आता है द मॉर्निंग ब्राइड, ये 1697 में लिखा। ये एक ट्रेजेडी थी जो इन्होंने कोशिश की। बाकी हमेशा इन्होंने कॉमेडीज लिखी लेकिन ये एक ट्रेजेडी थी। फिर अगला आता है नंबर द ओल्ड बैचलर का जो 1693 में लिखा, और ये इनका पहला प्ले था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला है द वे ऑफ द वर्ल्ड जो 1700 में आया। विलियम कॉन्ग्रीव जो है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। तो इन्हें रेस्टोरेशन पीरियड का एक बहुत महान ड्रामा नाटककार माना जाता है। इनका जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड इन आयरलैंड, मतलब कि इनका जो बचपन है आयरलैंड में बीता। स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, वहां पर इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई की। यहाँ पर ये मिले किससे? हियर ही मेट जॉनथन स्विफ्ट विद whom he maintained a lifelong association। यहाँ पर ये जॉनथन स्विफ्ट से मिले जिससे इन्होंने जीवन भर कनेक्शन रखा। प्रोसीडेड टू स्टडी लॉ एट मिडिल टेम्पल लंदन। उसके बाद कॉलेज के बाद में ये लंदन चले गए, आयरलैंड से, डबलिन से लंदन चले गए। वहां पे मिडिल टेम्पल है जहाँ पे इन्होंने, इनका इरादा था या इन्हें कहा गया था या ये आए थे वहां पर किस लिए? लॉ की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए, लॉयर बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत देखिए, ये बन बैठे एक राइटर, एक लिटरेरी करियर इन्होंने चूज किया। इसकी अलग कहानी है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके बारे में काफी मटेरियल है ऑनलाइन भी, तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे लॉयर बनते बनते एक राइटर बन गए। और इनका जो लिटरेरी करियर है एज ए राइटर, ये ब्रीफ था बट इट वाज ब्रिलियंट। मतलब कि छोटा जरूर था लेकिन छोटे करियर में भी इनकी चमक बहुत थी, काफी चमके थे। अपने थोड़े से मुट्ठी भर राइटिंग्स के साथ ये काफी चमके थे। जॉन ड्राइडन प्रमोटेड एंड सपोर्टेड हिम। जॉन ड्राइडन जो उस जमाने के जाने माने राइटर थे, और इतने जाने माने थे कि वो जो जमाना था उसको कहा जाता है एज ऑफ ड्राइडन। तो इतने जाने माने जो राइटर थे जॉन ड्राइडन, उन्होंने इनका हाथ थामा, इन्हें प्रमोट किया, इन्हें सपोर्ट किया। और उनका बहुत अहम रोल था कॉन्ग्रीव को एक ड्रामेटिस्ट बनाने में, एक नाटककार बनाने में।
Post the commercial failure of The Way of the World, Congreve did not write any more plays as the popular taste of the English theatre goers had turned towards the more middle class, moralistic, sentimental comedies of the 18th century. इसका मतलब ये है कि द वे ऑफ द वर्ल्ड जो 1700 में आया, उसका एक कमर्शियल फेलियर हुआ, मतलब कि वो एक तरह से आप कह सकते हो फ्लॉप रहा। और उसके बाद में उस चीज का कॉन्ग्रीव पे इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसके बाद और कोई भी प्ले नहीं लिखा, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि जो इंग्लिश थिएटर गोअर है, मतलब कि जो इंग्लिश सिटीजन है, राइजिंग मिडिल क्लास थी, और रेस्टोरेशन कॉमेडी जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसका पतन हो रहा था। तो जो नया नागरिक था, सिटीजन था, जो थिएटर आता था, उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स टाइप की कॉमेडी नहीं पसंद आ रही थी, और यही कारण था कि द वे ऑफ द वर्ल्ड एक फ्लॉप था, एक फ्लॉप ड्रामा था। और ये जो नया नागरिक था, नया थिएटर गोअर था, इसे पसंद क्या था? ये मिडिल क्लास का था, मॉरल्स थे इसके हाई, और इसे पसंद थी सेंटिमेंटल कॉमेडीज, जिसे 18th सेंचुरी में काफी उसमें धीरे धीरे चेंज आया, डोमिनेट किया। विलियम कॉन्ग्रीव जो थे वो किट कैट क्लब के मेंबर थे, और कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे भी रहे हैं अपनी डेथ तक, जो कि 1729 में थे। मतलब बहुत बड़े इंपॉर्टेंस नहीं था, फ्यू माइनर पॉलिटिकल पोजीशंस टिल हिज डेथ इन 1729। इनका अगर हम वो लिटरेरी आउटपुट देखें तो उसमें हम देखते हैं कि पहला इनका प्ले था द ओल्ड बैचलर, जो 1693 में आया। जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया है कि इसमें इनका सबसे बड़ा हाथ जॉन ड्राइडन का था, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया कॉन्ग्रीव को, और ये इंस्टेंट हिट था, रिलीज होते ही हिट हो गया। इसमें खासियत क्या थी? इसमें डायलॉग जो थे वो बहुत बढ़िया डायलॉग थे, लेकिन इसमें जो प्लॉट का एक्शन था वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मांगता था। तो अगला इनका जो राइटिंग था, अगला ड्रामा था, उसका नाम है डबल डीलर, और ये आया 1693 में। और इसमें इन्होंने अपनी जितनी भी कमियां थी जो पहले ड्रामा के बाद इन्हें नजर आई, इन्हें फीडबैक मिला, जॉन ड्राइडर ने भी इन्हें बताया होगा, तो इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया। और इस डबल डीलर में जो जो उसी साल आया 1693 में, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया कैरेक्टराइजेशन में, प्लॉट में, और स्टाइल में। तीसरा इनका था लव फॉर लव, 1695 में आया, और ये वो ड्रामा था जिसमें हम देख पा रहे हैं कि विलियम कॉन्ग्रीव एक परिपक्व, मैच्योर कॉमिक ड्रामेटिस्ट बन चुके थे। उन्होंने सीख लिया था, अपने दो ड्रामा से ही उन्होंने सीख लिया था कि बैलेंस कैसे बनाते हैं कैरेक्टर में, डायलॉग में, और एक्शन में। So in this he struck a fine balance between character, dialogue and action. चौथा था इनका द मॉर्निंग ब्राइड। मॉर्निंग ब्राइड जो आया 1697 में, ये इनकी कोशिश थी ट्रेजेडी लिखने की। ये एक प्ले ऐसा था जो इन्होंने एक ग्रैंडियोस हीरोइक मोड में लिखा था, जो कि एक स्टाइल थी उस जमाने में, काफी पॉपुलर थी। लेकिन ये एक इनकी अटेम्प्ट ही थी, बाकी यही एक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी है। अगला इनका था द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 का, और इसमें ये वापस से कॉमेडी पे आ गए, ही रिटर्न टू कॉमेडी। द वे ऑफ द वर्ल्ड को कहा जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडी का पीक, बेस्ट बेस्ट माना जाता है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कितने दुख की बात है कि ये कमर्शियल फेलियर था, मतलब ये फ्लॉप था जब रिलीज हुआ। कोई कमाई नहीं हुई, ना एक्टर्स की, ना ड्रामेटिस्ट की, ना थिएटर वालों की। और इसे इंपॉर्टेंस क्यों मिली है? क्योंकि क्रिटिक्स ने इसे बहुत महान माना है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा जजमेंट ऑफ पेरिस, जो कि एक मास्क था, और सिमेल सिमेल लिखा। सिमेल था एक ओपेरा था। यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 खत्म करते हैं, जिसमें हमने देखा कि
एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हमने इंफॉर्मेशन ली, और जो राइटर है विलियम कॉनग्रीव, उनके बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पढ़ा कि रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की कैसे हुई, उसका इंग्लिश ड्रामा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है और उसके कुछ फीचर्स क्या है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कॉनग्रीव के जो राइटर हैं उनके लिटरेरी करियर का ओवरव्यू लिया। तो यहाँ पर हम अपना ये पार्ट 1 खत्म करते हैं। अगले पार्ट में ये आगे कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, द वे ऑफ द वर्ल्ड के। उसमें आ जाता है प्लॉट की समरी और सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है? Okay, I hope you had a good learning and I hope you enjoyed the video. Okay, bye then till the next video.